Hello, everyone, and welcome to our YouTube channel, Humanities Adda. And if you are new to our channel, so you can just go and follow our page on Humanities Adda. Sorry, did I say our page? No, it's not our page. It's my sister's page, actually, my younger sister. She handles this page, and you can ask anything if you want, if you have any kind of query or anything. You can ask her there on Instagram page. She will reply you. And yes, on YouTube, I am also available. My name is Amisha Gautam. So on here, the teaching part, most of it is done by me. So you will find me lecturing here on YouTube every now and then. So we have to start a new chapter of political science, class 11, Indian polity. So I have just given over here a yellow box in which it is written watch, understand, score. What do I mean to convey to you is that you have to watch the lecture and you have to understand the concepts and then you have to score. मतलब आप पहले देखो, समझो और समझ जाओगे तो आपका अल्टीमेटली स्कोर जो है, मार्क्स जो है आपको मिल ही जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर, everything lies in understanding. If you do not understand things, then you are, you cannot just, you can mug up. Yes, you can mug up and you can score marks for a particular, period of time, but after that it will be of no use. So it's better that you start understanding the concepts of political science, of history, and whatever subjects you are reading. So just let's get into the video. This is about myself. I have done my graduation in history from Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University. Currently, I'm pursuing a master's in history from DU itself, and I'm also preparing for UPSC CSE examinations. So this chapter is election and representation. Everyone knows about election. What is election? General elections होते हैं आपके. सबको पता है election क्या होता है. I do not need to define what is election. And so let us begin with the introduction. There are different rules or system of conducting elections. अब आप देखो, elections को conduct करने के लिए different rules और systems होते हैं. And इन्हीं सिस्टम्स और रूल्स के कारण आप देखोगे कि जो हम अडॉप्ट करेंगे, जो भी, जैसे मान लो कि दो, देयर इज वन एक्स रूल एंड देयर इज वन वाई रूल. सो इफ यू अडॉप्ट द एक्स रूल, so the outcome will come something else, and if you adopt the y rule of conducting elections, the outcome will come something else. दैट मीन्स जो आपका इलेक्शन का रिजल्ट है, आउटकम है, वो डिपेंड करता है रूल्स पे, सिस्टम पे जो आपने अडॉप्ट किया है कंडक्ट करने के लिए इलेक्शंस. दैट मीन्स मोड ऑफ इलेक्शन कैसा है आपका, क्या मेथड आप यूज कर रहे हो. वी विल लुक इनटू दैट व्हेन वी विल बी डूइंग टू मेथड्स ऑफ इलेक्शन. जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो आपके आउटकम्स है, रिजल्ट्स हैं, वो डिफर कर जाएंगे अगर मेथड्स जो इलेक्शन के हैं वो डिफर करते हैं, डिफरेंट हो जाएंगे. तो next thing is that some machinery is required to conduct the elections in an impartial manner. It is very much, एक तरीके से आप देखो तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि मशीनरी रिक्वायर्ड है कंडक्ट करने के लिए इलेक्शंस इन एन इम्पार्शियल मैनर, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट से द गवर्नमेंट जो ऑलरेडी अभी पावर में है उसको आप बोल दो कि तुम ही इलेक्शंस को मैनेज करो, एंड द गवर्नमेंट दैट इज सिटिंग इन पावर वो मैनेज करेगी इलेक्शंस को. सो विल इट बी एक तरीके से डेमोक्रेसी का वो एक, आप बोल सकते हो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा? वो नहीं होगा, बिकॉज देयर द इलेक्शन विल नॉट बी फेयर, इट विल बी अनफेयर. एंड एक आप बोल सकते हो कि फिर वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी लैकिंग इन दैट काइंड ऑफ इलेक्शन वेयर द गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग ऑल द इलेक्शन रिलेटेड थिंग्स. सो दैट इज वाई वी नीड अ डिफरेंट इंडिपेंडेंट मशीनरी जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, दैट हैज काइंड ऑफ डिफरेंट पावर्स है उसके पास बहुत अच्छे खासे. तो उस केस में आप देखते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज देयर. We will deal with that also, but in later part of this chapter. Now, since these two decisions, which two decisions? पहला decision हो गया आपका कि rules और सिस्टम कंडक्ट करने का इलेक्शन का कौन सा हमें चाहिए, ठीक है, कौन सा चूज करेंगे. सेकंड हो गया कि मशीनरी है, मशीनरी कौन सी होगी,
which machinery will be conducting the elections. तो ये तो decisions जो है वो they need to be taken before the game of electoral politics can begin. इनको आपको इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले लेना होगा इन डिसीजंस को, अदरवाइज इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद आप क्या करोगे, व्हेन देयर विल बी नो मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शंस, मैनेज करने के लिए कोई मशीनरी ही नहीं है आपकी, कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, देन हाउ द इलेक्शंस विल गो ऑन. And then you do not have then even you haven't set any kind of rules or system, you haven't adopted any kind of system for elections, then again what will be the use of election then? जब आपको यही नहीं पता कि कौन सी मशीनरी मैनेज कर रही है, जब आपको यही नहीं पता कि सिस्टम कौन सा होने वाला है इलेक्शन में, वोटिंग किस बेसिस पे होने वाली है, क्या तरीका होगा, तो ये दो चीजें जो है वो आपको पहले से बिफोर हैंड डिसाइड करके रखनी पड़ेगी इलेक्शन से. तो दीज कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट के हाथ में ये चीजें नहीं छोड़ सकते, बिकॉज गवर्नमेंट इटसेल्फ विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन एंड गवर्नमेंट हैज द पावर एट दैट टाइम. अगर गवर्नमेंट को देखो तो वो खुद पावर में, एंड it's very much possible that government may get involved in some kind of unfair practices. तो वो होगा तो फिर आप बोल सकते हो कि फिर जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा. देन फिर व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी विल बी. तो फिर डेमोक्रेसी किस चीज की, जब इलेक्शंस ही डेमोक्रेटिक वे में नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस चीज की होगी. दिस इज द नीड, दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. Now, hence, these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country. तो इसीलिए ये जो कुछ बेसिक डिसीजंस होते हैं इलेक्शंस के बारे में, कॉमन डिसीजन, बेसिक डिसीजंस, एकदम फंडामेंटल डिसीजंस, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे हुए मिलेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के. फॉर country like India, we also have the basic decisions about elections written in our constitution. There are provisions that refer to these things. तो आपको इतना आई गेस इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया अभी. Now let's move on to the next topic, that is in this chapter what we will be focusing. इस chapter में हमें क्या क्या डील करना है. First we have to go through this. हमें देखना है constitutional provisions regarding elections and representations. Constitutional provisions क्या क्या है election के regarding, representations के regarding, कि किसको कितनी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है या फिर क्या रिप्रेजेंटेशन का बेसिस होगा एंड ऑल दैट. फोकस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शन चोजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. मेथड ऑफ इलेक्शन कैसा होगा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा मेथड ऑफ इलेक्शन चूज किया है फॉर आवर कंट्री, फॉर द जनरल इलेक्शंस एंड फॉर यू कैन से फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड विधानसभा. इन लोगों के लिए, इनके मेंबर्स के लिए कौन सा मेथड ऑफ इलेक्शन है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इस पे भी हम फोकस करेंगे. देन इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस. सो आप देखो कि ये जो सजेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, इस पे भी हम थोड़ा बहुत फोकस करेंगे एंड वी विल बी डीलिंग विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ सम सजेशंस फॉर अमेंडिंग, at the end we will be looking at some of the suggestions for amending the constitutional provision in this respect. तो कुछ electoral reforms की भी जरूरत है हमें हमारी country को, because there are certain things which are considered as undemocratic and they need to be changed in present times when it comes to election and to representation and voting and all that. So we will look into that also कि क्या electoral reforms, कौन से reforms हमें चाहिए अभी present times में, and what the what the people are saying and what is the demand regarding the reforms. So now comes the next topic. Just a second. Now, elections and democracy. Can we have democracy without holding elections? The question is this. And the answer is absolutely no, we cannot. Democracy नहीं एग्जिस्ट कर सकती बिना इलेक्शंस के, बिकॉज हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लार्ज डेमोक्रेसी में. सी इफ द डेमोक्रेसी इज स्मॉल and the population is small, then
the people, they can they can just get involved in the activities, the government activities, and they can just एक तरीके से वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले फॉर्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसमें फिर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द लॉ मेकिंग एंड इन द जो भी बिल्स एंड ऑल पास करने होते हैं तो वो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इट हैपेंस इन सम ऑफ द कंट्रीज. बट द केस इज दैट कि लार्ज डेमोक्रेसी में, एंड फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इट इज impossible to go for your direct democracy. That is why representation is very much required, and elections are important since all the citizens cannot take part in decision making, and therefore they elect their representative. Why do we elect representatives? Why do we send someone from our constituency? हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी को इलेक्ट करके क्यों भेजते हैं? सो दैट ही मे एक्ट एज अ एक्ट एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारा रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो एक्ट कर सके, हमारे जो ग्रीवियंसेस हैं और हमारी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो व्हाटएवर आर नीड्स एंड व्हाटएवर आर requirements are there, he can speak for us, for the people of his or her constituency. Now elections have today become the most visible symbol of democratic process. Elections को अगर आप देखो तो ये प्रेजेंट टाइम्स में सबसे विजिबल सिंबल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के, ये मोस्ट विजिबल सिंबल है. सो विदाउट इलेक्शंस यू कैन नॉट से दैट यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इलेक्शंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज इलेक्शंस ही नहीं होंगे, आपके रूलर्स ही नहीं चेंज होंगे, तो देन व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी यू आर लिविंग इन? you have the right to choose your representative, your leaders. People are choosing the leaders in a democracy, and then if you are not given the right to choose only, then what kind of democracy it is? So we cannot have democracy without holding elections as far as the indirect democracy is concerned. Okay, so let's move on to the next section, next topic that we have. Okay, here is a picture that says, why do we need elections? Let us try to imagine a democracy without elections. अब एक democracy imagine करो जहाँ पे elections ही नहीं हो रहे. A rule of people is possible without any elections. देखो democracy है क्या basically? Democracy is rule of people, जहाँ पे लोगों का राज, लोग एक तरीके से सुप्रीम है, लोगों के पास पावर है, and all the power lies in the people, and then they put that power into their representative. एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि पावर जो है, पावर का फ्लो from the people to the politicians हो रहा है, not from the politicians to the people. So the people are in power in a democracy, you can say. उनके पास पावर है चूज करने की. A rule of people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. So ये आपका पॉसिबल तभी है कि जब सारे लोग मिल बांट के बैठ के रोज रोज डिसीजंस ले, लॉज बनाए, बिल्स पास करें, एंड डिबेट करें, एंड एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए उस चीज की, एंड देन there are people those who do not know anything about anything, you can say. But this is not possible in any large community. Large community पे अगर अभी आप बात करो, अपनी call your 10 friends and ask them that if you are going out to eat someone, and tell them to suggest a place to go, and just tell them that कोई कैफे सजेस्ट करो, या फिर कोई just suggest some good place to go to just eat, or just suggest, and you can just even ask them what to eat. So they will not come to a single conclusion. जैसे आप एक conclusion पे लाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर आप रेस्टोरेंट कैफे ही पूछ लो उनसे, तो they will not come to a single conclusion. Some will say no, I'll not go there. Some will say no, my idea is best, or the cafe which I have suggested is the best, we should go there. That place is not as good, the food is not good there, it's too far from here. So these kind of excuses will start coming up. तो आप देख रहे हो कि जब 10 लोगों को या 10 से 15 लोगों को ही आप इस तरीके से एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा सकते, then how can you think that a country big like such a vast country and with full of diversity like India can decide and make decisions about
the laws and regulations and the rules and the bills and all that. But this is not possible, ठीक है, large community में नहीं possible है, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. It's obvious, not everyone has the time. Someone has to go to the office, everyone has to go to the schools. Children, they will be going to school, the youth, they will be going to the college, and new students like me, they will be attending their online classes. So I will not have the time to go and involve in get involved in such kind of activities. Then I have to do, then yes, I have to record the YouTube videos also. So मेरे पास time नहीं होगा ultimately, and then again I have to take the crash course at night. So आप देखो कि अलग अलग लोगों को, for the students in case of students, you see, again जो आपके 11th 12th के students है वो भी online classes में busy रहते हैं. Then they have to, this crash course, from this crash course to tuitions, this tuitions, that tuitions, then again they go back to YouTube. So this is the thing that everyone will not have the time and knowledge. Decision making का सबके पास knowledge नहीं होगा. Maybe the humanities students will have an edge over here. The student who are studying political science, they will have a kind of edge over here, an edge over here, and they will understand what is, what it is to like and frame the laws, what are rights, and what are different kinds of, things related to political science and polity, Indian polity, for instance. So हिस्ट्री पढ़ने वालों को, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों को, ये सारी चीजों को थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग को होगा कि हाउ थिंग्स आर डन. बट व्हाट अबाउट द साइंस स्टूडेंट्स, what they will do and what they will do with the laws, how to make the laws and how to pass them, and what is the what happens in the parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha, ये उनसे ये अगर एक्सपेक्ट करो तुम कि हायर लेवल पे वो उस चीजों को अंडरस्टैंड करें, एंड देन इट इज सेड कि जो डिसीजन है वो ये बोला जाए कि क्या बोलते हैं आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले मेथड से लिया जाएगा, तो फिर हो गया. तो दैट इज द केस कि नहीं ले सकते ये. तो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसीज people rule through their representatives. That is why we require representatives, and representatives को elect करने के लिए हमें elections चाहिए ही चाहिए. Now here is again a picture, here you can see it. Direct democracy है यहाँ पे देखो, these the people are here, the people, and they are voting and they are directly voting, and laws rules, तो directly ये laws and rules के लिए वोट कर रहे हैं. एक law बना दिया गया है, उनको दे दिया गया, and then they are being asked कि आपको ये law चाहिए नहीं चाहिए, yes no आप बता दो, वो करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? On the other hand, this is the representative democracy, or you can say the indirect democracy. Here people vote and they elect a representative, and this representative on the other hand, he makes the rules, laws. So is this I hope this is clear to everyone. Now we have to see the difference between direct versus indirect democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. सिटीजन का एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. डे टू डे डिसीजन मेकिंग में दे विल पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इवन दे विल पार्टिसिपेट इन रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. एंड इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, citizens choose their representative who in turn are actively involved in governing and administering the country. So indirect democracy में representatives जो हैं वो involved होंगे. Ancient city states in Greece were considered example of direct democracy. एक example है ancient city states in Greece direct democracy का. Indirect democracy में आप और देखो, citizens are involved only directly through their elected representatives. Citizens इन्वॉल्व इनडायरेक्टली होते हैं, सिर्फ अपने एक तरीके से दे आर ओनली इन्वॉल्व इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव इज एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ. नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप देखो कि many would consider local governments, especially gram sabhas, to be the closest example of the direct democracy. Please remember this. What is the closest example of direct democracy in India? तो वो ग्राम सभा है. बट दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है,
कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन अ डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोर्स ऑफ पीपल। तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ज्यादा पॉपुलेशन के लोग हैं और उनको कहा जाए डिसीजन लेने में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। Indirect democracy में, on the other hand, we see that the citizens have a limited role in making major decisions and in running the administration। वही बात है, citizens का limited role है। The method followed to choose these representatives is referred to as an election। अब ये जो representatives को choose किया जाता है, method जो है उसको कहा जाता है कि election कराए जाते हैं, उसके बाद representatives are chosen। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इट्स ऑब्वियस। इन दिस अरेंजमेंट, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर आप देखो, in this arrangement where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect them becomes very important। तो जो मेथड, जिस मेथड से लोग उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। the method of electing them, that becomes very important because all the major decisions are taken by the elected representatives। so I hope this is clear। now second, अब ये जो next topic है, that is about elections and democracy। can we hold elections without having democracy? इलेक्शंस क्या हम होल्ड कर सकते हैं बिना डेमोक्रेसी के? दैट मींस वी आर नॉट एक्चुअली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वी हैव इलेक्शंस एंड कैन वी प्रिटेंड टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, just for the international reputation गेन करने के लिए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कुछ कंट्रीज दे डू सो। नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। वी विल सी दी इसके बाद वाले स्लाइड में हम देखेंगे व्हाई। A large number of non-democratic countries also hold elections as the rulers are keen to present themselves as democratic। Since the democracies, they are considered a good form of government, they are considered as more representative and you can say accountable, transparent, and बहुत सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। तो राइट्स होते हैं लोगों के पास। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दे ऑफन, उसके जो रूलर्स होते हैं, इलेक्शंस हेल्ड करवाते हैं एंड बस इसीलिए ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके इस तरीके से कि वो डेमोक्रेटिक है। Now elections are held in such a way that it does not threaten the rule। अब इलेक्शंस को इस तरीके से कराएंगे ना, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या हो ही रहा है, क्या वो मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उनके रूल को भी थ्रेट नहीं होगा, इलेक्शंस भी हो जाएंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन फिर रूलर वही का वही रहेगा। मतलब वही पॉलिटिशियन जो है, वही पॉलिटिकल पार्टी रूल में रहेगी इवन आफ्टर दी इलेक्शंस एंड ऑल दैट। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आप बोल सकते हो बस दिखावा करने के लिए इलेक्शंस कराए जाते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम योर क्लास 11th क्लास 9th एनसीईआरटी बुक, कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन के फीचर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट एवरी वन शुड बी एबल टू चूज। हर इंसान को के पास ये राइट होना चाहिए कि वो वोट कर सके, चूज कर सके। दिस मीन दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो हर इंसान के पास आपका एक वोट होना चाहिए, वन वोट, एंड एवरी वोट शुड हैव द इक्वल वैल्यू, सब सारे वोटों की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voters। पार्टीज और आपके जो कैंडिडेट्स हैं फ्री होने चाहिए कॉन्टेस्ट इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने के लिए, एंड दे शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। वोटर्स के पास चॉइस भी तो होनी चाहिए ना इलेक्ट करने के लिए, एक तरीके से वोट देने के लिए। इफ दे आर गोइंग इनटू द जस्ट ईवीएम मशीन के सामने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ऑप्शंस ही नहीं है एंड देयर इज जस्ट वन button over there and they have to press that, then what kind of that election would be? तो ऑप्शंस आपको देने ही पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यू कैन नॉट जस्ट मेक एन ईवीएम मशीन एंड उसमें आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है और उसी पार्टी को आपको या फिर उसी कैंडिडेट को आपको वोट करना है, एंड देन यू आर सेइंग दैट यू हैव कंडक्टेड इलेक्शंस। सो वो इलेक्शन फिर आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होगा। तो ये एक फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स के बाद ये चॉइस आपको ऑफर होनी चाहिए। दैट मींस इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू इयर्स। रेगुलर पैटर्न पे इलेक्शंस होने चाहिए। दैट मींस फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ इंडिया अगर आप देखो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि एक बार कराया और फिर भूल ही गए, अगले 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं हुए और बैठे रहे फिर सब, और उसके बाद देख रहे हो तो आप कुछ भी हो रहा है आपकी कंट्री में, फिर थोड़े दिन में फिर से वापस आ गए पुराने दिन, राजा राजाओं वाले। So that should not happen, these kind of things. So ये democratic elections के ये features हैं, and if these features are missing, that means the country is not following the democratic elections. कंट्री की डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रॉपर, और इलेक्शंस जो है प्रॉपर मैनर में नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं। देन यू हैव द फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब जो कैंडिडेट को लोगों ने प्रेफर किया है, ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया है, उसको इलेक्ट भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसको वोट्स मिल गए एंड देन उसकी विगिंग विगिंग करके आपने उसमें वहां पे करप्शन कर दिया जाके, और कुछ ईवीएम के साथ, ईवीएम इनफैक्ट इट इज सेड दैट ईवीएम इज नॉट इजी टू टैम्पर, उसको उसके साथ टैम्परिंग नहीं की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उसकी मशीन जो है तो डिफरेंट वे में बनी हुई है, सो दे कैन नॉट बी हैक्ड और टैम्पर्ड, उनका डेटा कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो बैलेट पेपर वाले टाइम पे होता था वो थोड़ा बहुत कि आप इधर उधर कर दो। सो ये भी है कि जो इलेक्ट हुआ है उसको, जो प्रेफर किया गया है लोगों द्वारा, उसको इलेक्ट करना भी है। एंड देन फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। सो ये एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, दैट गोली रख के सर पे आप बोल रहे हो कि वोट दो एंड यू शुड वोट दिस पर्सन एंड यू शुड वोट दैट पर्सन, and that used to really happen in few years back. If you just can, अब कुछ स्टेट्स के बारे में अगर आप देखो, इनफैक्ट लुक एट माय स्टेट फॉर इंस्टेंस, एंड इफ यू नो फ्रॉम विच स्टेट आई बिलोंग, देन यू विल अल्टीमेटली गेट टू नो, जस्ट फिगर इट आउट फ्रॉम विच स्टेट आई बिलोंग। सो उसके बाद देखना कि यहाँ वाले इस एरिया में, मतलब मेरे स्टेट में तो काफी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, बूथ कैप्चरिंग एंड ऑल दैट। सो it was I was very small at that time, but अब उतने नहीं होते हैं वैसे cases, but even then people are they are threatened and they are said something or the other thing. So politics ऐसी चलती रहती है। So अब आप देखो कि what can be done to ensure that elections in a country would be conducted in a democratic manner। अब क्या ऐसा करना चाहिए इंश्योर करने के लिए कि जो इलेक्शंस है आपकी कंट्री में वो डेमोक्रेटिक मैनर में कंडक्ट हो। So the constitutions of a democratic country lays down some basic rules about elections। तो सबसे पहली बात तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही रूल्स ले डाउन करती है, some basic rules about the elections, वो आपको फॉलो करने हैं। और डिटेल वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट आउट, वो छोड़ दिया जाता है लेजिस्लेचर के लिए, सो दैट लॉज जो है वो बाद में आपके लेजिस्लेट करके पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है बेसिकली। और टू से मोर प्रॉपरली टू लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव, टू द गवर्नमेंट, टू मेक मोर लॉज एंड टू उसको डिटेल करके उसमें डिटेलिंग करे उन बेसिक रूल्स में। सो दैट इज डन by the parliament, by the legislature। the basic rules are usually about, ये जो basic rules हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस बारे में है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हु इज एलिजिबल टू वोट, वोट कौन कर सकता है। हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है इलेक्शन में, क्या उसकी एक तरीके से देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज ऑल्सो दैट इफ यू आर आई थिंक representation of people act or some act is there, I'll tell you in the next lecture. I'm just not recalling it, I'm not able to recall the act now, just a second, I'll just tell you। Okay, so तब तक एक काम करते हैं, wait just a minute। Yeah, so I was talking about this act. This act is named the Representation of the People Act 1951 का ये act है, और इसमें बहुत सारे आपके provisions है, but most important provisions are regarding the qualification of the आपके जो एक तरीके से जो आपके MPs हैं या फिर MLAs हैं, तो वो कौन qualifications and disqualifications उसमें दी हुई है कि who is qualified and who is disqualified to contest the elections। Now who is to supervise the election, this is also basic rule में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कौन सुपरवाइज करेगा। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरवाइज करता है। हाउ डू वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव,
हाउ द वोटर्स विल बी चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, वोटर्स जो है किस तरीके से चूज करेंगे, एंड हाउ आर दी वोटर्स टू बी वोट सॉरी हाउ आर दी वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, वोट्स किस तरीके से काउंट होंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो किस तरीके से इलेक्ट होंगे, ये भी आपके बेसिक रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको मिल जाएंगे. नाउ थिंग्स फ्रॉम दिस अपार्ट, जस्ट अ सेकेंड, we will have the last question. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, मतलब एक तरीके से सारे ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे, ऑल द क्वेश्चंस, all answers of all these questions are there in the constitution itself. And first three questions, if you look at the first three questions, यहाँ से who is eligible to vote, to consent, to contest, and who is to supervise the elections. These three questions are about ensuring free and fair elections. तो ये तीन questions ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हो. और लास्ट के दो क्वेश्चन जो है, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड. ये जो क्वेश्चंस है ये है अबाउट इंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो एक तरीके से इलेक्शन के बाद. So this is it for the today's video, and yes, this is about something that I wanted to share. हमारे if you just go and follow the Humanities Adda page, and if you are already following, then you know that we also provide notes for different subjects of class 11th and class 12th also. So if you are in 11th and you want to buy any of these subjects notes, you can contact Manisha on Humanities Adda. And if you are not in 11th, but you will be in 12th sooner or later, then you can buy our class 12th notes in your future. So thank you so much for watching, and do like this video if you actually like this video, share it with your friends, and subscribe to our YouTube channel if you haven't subscribed it yet. Please do subscribe, please. And please also press the bell icon. Yeah, वो भी दबा देना प्लीज. हाँ ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब तो प्लीज आज करके ही जाना. ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.